चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तुमने छोड़ा था आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार से। चलिए स्टार्ट करते हैं। The narrator comes across the second part of the lesson, discuss about Mukesh in Firozabad. Mukesh lives in a dusty street. He become a motor mechanic, but his dream is like a river which is very difficult to come true. Firozabad is famous for bangles. People from every other household were engaged in making bangles. They have spent many years attaching glass to the furnaces. More than 20,000 children illegally lived in front of hot furnaces. Often they lose their eyesight. The law, rule, and regulation was not even there. The people of Firozabad lived in very stinking streets where garbage was always spread. Walls of their houses have also fallen halfway. There are only temporary doors with no hanging doors and tight windows. The elders also work in the bangles industry and they are very poor, do not have enough money to fix their house. They also raised animals and their rooms was very small that both animals and humans lived there together. Due to poverty, people do not have much money who could send their children to school. Their children also had to work in the furnaces of these bangles so that they could support their family. Mukesh also belonged to a family that makes bangles. Once his grandfather was blinded in front of his grandmother because when he was making bangles, a piece of glass got pierced in his eye, and that is why his eyesight was lost. Despite this, Mukesh's family did not stop making bangles because they believed that happened written in their destiny. Everything is due to God, and they feel that work should be continued. Bangle has been given great importance in India. It is considered sacred and holy. It enhances the beauty of woman's wrist. Bangle considered to be a sign of Suhag and worn by a married woman. Firozabad has seen very little chance over time. There is not enough food for the family to eat for 2 times. They do not even have enough money to continue business of making bangles and can do any other work. All the middlemen of Firozabad have been caught in the vicious cycle which trapped his father and grandfather. With the chance of time, the dreams of the children, there are also ending. That's how they ruin childhood. The people of Firozabad are not able to get their lives right because middlemen exploited them. These people are very poor. They do not have much money, so borrow money from money lenders. When they are unable to return the money, the policemen also tortured them. And for this reason, they fall into a special circle of poverty from which they never get out. Mukesh is a little different from all this. He has some new dreams. When the narrator meets Mukesh, asks him if you will fly the plane. Mukesh says that no, I only want to drive the car that runs on the road of Firozabad. The narrator asks him to do this because he used to fly the aeroplane many times from Firozabad. Anis Junk named this chapter Lost Spring because of the best spring of all the season, which no one wants to miss. In the same way, the best time in a man's life is childhood, which no one wants to lose. So Anis Jung has compared childhood to spring in this chapter. तो चलिए पार्ट 2 में आपका क्या है? जस्ट होल्ड ऑन, हम ऊपर आ जाते हैं. हाँ, जो नरेटर है वो क्या बताना चाह रहा है? जो नरेटर है वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करता है कि मुकेश की लाइफ फिरोजाबाद में कैसी थी. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, सेकंड पार्ट में.
मुकेश कहाँ रहता था? डस्टी स्ट्रीट में, यानी गंदी मैली सड़कों पे वो रहा करता था। उसका सपना था मोटर मैकेनिक बनने का, लेकिन ये जो छोटा सा सपना भी था वो काफी मुश्किल था उसे फुलफिल करने के लिए। फिरोजाबाद फेमस था बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए। वहां पे कई सारों का मींस कई सारे घर इसी बिजनेस से चला करते थे, और काफी सारे परिवार बैंगल मेकिंग का काम किया करते थे। सालों से वो भट्टी में, जलती हुई भट्टी में ये काम करते हुए आ रहे थे। फर्नेस माने क्या होता है? भट्टी। 20,000 बच्चे इलीगली मानिए गैर कानूनी तरीके से फर्नेस के सामने, हॉट फर्नेस यानी गर्म फर्नेस के सामने खड़े रहते थे, जहां पे उनकी आई साइट भी, उनकी आंखों की रोशनी भी जाने का खतरा रहा रहता था। जो लॉज थे, रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, मींस जो नियम कायदे कानून थे, वो नहीं थे। जो पीपल थे वो काफी स्टिंकिंग स्ट्रीट्स में रहते थे, जहां पे गार्बेज, जहां पे कचरा हर जगह स्प्रेड रहता था, हर जगह फैला रहता था। जो वॉल्स भी थे उनके गिर रही थी, टेम्परेरी डोर्स थे, और जो उनके दरवाजे थे वो ऐसे लटके रहते थे, दरवाजे खिड़कियां लटकी थी। मींस कच्चा मकान था, तो प्रॉपर मकान भी नहीं था उनके पास। जो एल्डर्स थे वो का मींस वो भी बैंगल इंडस्ट्री में काम किया करते थे, बैंगल्स इंडस्ट्री में, और काफी पुअर थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो अपने हाउस को फिक्स कर सकें। वो साथ ही साथ एनिमल्स भी रेस किया करते थे, पशु मीन्स गाय बकरी ये भी पाला करते थे, और एक छोटे से कमरे में दोनों ह्यूमन और एनिमल्स दोनों रहा करते थे। मीन्स जानवर और इंसान एक साथ रहा करते थे। पॉवर्टी के कारण उनके पास ज्यादा पैसे कभी नहीं रहे, गरीबी के चलते उनके पास पैसे कभी नहीं रहे, और इसी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को भी कभी स्कूल नहीं भेजा। जो बच्चे थे वो भी इस काम में लग जाते थे शुरुआती दौर में ही, यानी छोटी सी उम्र में वो बैंगल इंडस्ट्री में जुड़ जाते थे और अपनी फैमिली को सपोर्ट किया करते थे फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से। फाइनेंशियली मीन्स होता है आर्थिक, है ना। मुकेश भी इन्हीं फैमिली में से बिलोंग करता था। उसके ग्रैंडफादर ब्लाइंडेड मीन्स अंधे हो गए थे उसकी ग्रैंडमदर के सामने ही। जब वो एक बार बैंगल्स बना रहे थे तो एक छोटा सा ग्लास का टुकड़ा उनकी आंखों में घुस जाता है, चुभ जाता है, और इसी कारण वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। लेकिन मुकेश की फैमिली बैंगल बनाना स्टॉप नहीं करती है, मींस दे डू नॉट स्टॉप मेकिंग बैंगल्स। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करने लग जाते, भरोसा कर लेते कि ये उनकी डेस्टिनी थी, उनकी ग्रैंडफादर मींस ये लिखा ही गया था उनकी किस्मत में कि अंधे होंगे। तो इसी वजह से एवरीथिंग इज ड्यू टू गॉड, उनका मानना था हर चीज की वजह भगवान ही होता है, और इसी वजह से उन्हें अपना काम कंटिन्यू करके रखना चाहिए। बैंगल का एक बहुत ही मीन्स एक ग्रेट इंपॉर्टेंस दिया जाता है इंडिया में। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो चूड़ी है उसका एक खास स्थान रहता है हमारे हिंदुस्तान में। इसे काफी पवित्र माना जाता है, धर्म से रिलेटेड माना जाता है चूड़ियों को। साथ ही साथ ये इनहेंस करता है, इनहेंस माने बढ़ाता है एक महिला के रिस्ट को, रिस्ट माने उनकी कलाई को, की शोभा बढ़ाता है। इसे सुहाग की निशानी भी माना जाता है और काफी सारी शादीशुदा महिलाओं द्वारा पहना भी जाता है। फिरोजाबाद हैज सीन वेरी लिटिल चेंज ओवर टाइम। फिरोजाबाद में चेंजेस हुए हैं लेकिन बहुत ही कम हुए हैं। वहां पे कभी भी पूरा प्रॉपर खाना नहीं रहा है फैमिली के लिए कि 2 टाइम भी प्रॉपर खाना, प्रॉपर मील उन्हें मिल सके। उनके पास पर्याप्त पैसे कभी नहीं रहते थे कि वो एक नया काम भी शुरू कर सके या अपने इस बैंगल मेकिंग के ही काम को वो और आगे बढ़ा सके। All the middlemen of फिरोजाबाद have been caught in the vicious cycle. जितने भी मिडलमैन थे फिरोजाबाद के वो कॉट हो चुके थे, मींस एक तरह से ट्रैप हो चुके थे, ठीक है ना, विशियस साइकिल में। उनके फादर, मुकेश के फादर, उसके ग्रैंडफादर भी इस साइकिल में एक तरह से फंसे हुए थे। टाइम के साथ, बदलते समय के साथ साथ बच्चों के ड्रीम्स भी खत्म होने लगे थे, यानी जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे इन बच्चों के सपने भी एंड हो रहे थे। इनके जो सपने थे वो पूरी तरह से रुइन मींस बर्बाद हो चुका था। उनका पूरा बचपन, बच्चों का वहां के जिस तरह से सीमापुरी के बच्चों का कोई बचपन नहीं था, उसी प्रकार लाइकवाइज
यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हमारे जो फिरोजाबाद के भी स्लम एरियाज के जो बच्चे, इनका भी कोई चाइल्डहुड नहीं था। The people of Firozabad are not able to get their lives right. Means जो people थे फिरोजाबाद के, वो अपने जीवन को एक तरह से क्या कहना चाहिए, सही नहीं कर पाए थे। क्यों? ये जो बिचौली थे, जो समाज के बिचौली थे, वो उनको एक्सप्लॉइट करते रहते थे, उनका शोषण करते रहते थे। ये लोग काफी गरीब थे और इनके पास हमेशा पर्याप्त पैसा नहीं रहता था, तो इसी वजह से वो क्या करते थे, मनी लेंडर से, साहूकारों से पैसा उधार लिया करते थे ब्याज के रूप में। जब वो असमर्थ हो जाते थे, व्हेन दे वर अनेबल टू रिटर्न द मनी, तो पुलिस उन्हें टॉर्चर करती थी, और फॉर दिस रीजन दे फॉल इनटू द स्पेशल सर्कल ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम विच दे नेवर गेट आउट। और इसी वजह से एक विशेष रूप से जो पॉवर्टी का सर्कल था, मींस ये गरीबी का जो चक्र था, वो उसके अंदर चले जाते थे और उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते थे। ठीक, मींस ये जो थे फिरोजाबाद के जो पीपल थे, वो मनी लेंडर्स से मनी लिया करते थे, एंड टाइम पे वो नहीं चुका पाते थे। क्यों? ब्याज रहता था, पता नहीं क्या क्या चीजें वो लगा देते थे, एक्स्ट्रा मनी वो मांगा करते थे, एक्सप्लॉइट किए जाते थे। और जब वो पैसे नहीं चुका पाते थे, तो पुलिस उन्हें टॉर्चर करती थी, और साथ ही साथ उनका फ्यूचर और ज्यादा बर्बाद, उन्हें जेल में भी डाल देती थी, मारपीट करती थी। तो इसी वजह से वो इस पॉवर्टी के सर्कल से कभी बाहर नहीं निकल पाए, और कोई था भी नहीं जो उन्हें रेस्क्यू कर पाता। मुकेश हालांकि थोड़ा डिफरेंट था इन सब में से, उसके कुछ नए सपने थे। जब नरेटर की मुलाकात मुकेश से होती है, तो वो बोलती है, क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहोगे? तो मुकेश मना कर देता है। वो केवल मींस मोटर ही ड्राइव करना चाहता है जो सड़क पे चलती है, क्योंकि वो कई बार नरेटर का भी मन तो इसी वजह से, मींस उसका कोई मेन हालांकि मकसद नहीं था। ठीक है ना? नरेटर का जो भी कहना चाहिए, हालांकि मींस वो ये जानना चाहती कि आखिर इसके सपने क्या है। ठीक है ना? जब वो उससे मिलती है, अनीस जंग ने इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा है ना? क्योंकि विच नो वन वांट्स टू। लॉस्ट स्प्रिंग एक ऐसा सीजन रहता है, सभी सीजन में बेस्ट रहता है और कोई भी इसे मिस नहीं करना चाहता है। तो ठीक उसी प्रकार भी हमारे लाइफ का सबसे अच्छा पल, सबसे अच्छा मोमेंट क्या रहता है? हमारे चाइल्डहुड मोमेंट्स रहते हैं, जो कोई भी खोना नहीं चाहता है। लेकिन जिसका कोई लॉस्ट स्प्रिंग जैसे खोता जा रहा है आज के दौर में ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक उसी प्रकार इन बच्चों का भी जो चाइल्डहुड है वो एक तरह से लॉस्ट हो गया है। तो इसी वजह से जो मेन रीजन है, ये टाइटल पूरा राइट बैठता है इस चैप्टर के लिए। ठीक, आई होप आप लोगों को ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना? पढ़िएगा, कोई भी दिक्कत जाती है आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।